Okay. So before getting started, we would be starting off with the recapitulation of the yesterday's class of whatever things we did yesterday. So who wants to go? Sir, Yeah, sure. sir, last class we mainly talked about static website hosting, Storage Explorer, and WinSCP. We first talked about the difference between static and dynamic websites. Static websites are mostly informational websites, whereas dynamic websites require the user interaction to populate a certain kind of content into the website. Then we talked about hosting, static website hosting. Earlier, what we did was for hosting, we used to create a virtual machine, convert it into a web server via IIS or Apache, then got the public IP address. We used to hit the IP address to get to see the website that we have hosted. But in terms of costing, it would be not feasible or not a suitable option. We also had the option of static website hosting in Azure. So we went for it and we learned how to create it. And then we talked about Storage Explorer. We installed it and saw how the application looks like. The main use case was it made the copying the content from copying and uploading easy in the Storage Explorer. Sorry. Then we saw how to connect a Ubuntu VM using password and username. We tried to install the WinSCP, and if we try to edit after installing the WinSCP, we try to connect a virtual machine, remote VMs, and we on the left hand side we had our own content of our own PC in the WinSCP. And there, if we try to edit inside the var, ww, and HTML directory, we were unable to change. So we had to go to home/silicon to change the content. After that, we tried to create, suppose we want to create a replica of a particular virtual machine. We saw how we can do it. We copied an OS disk in the Storage Explorer and created a virtual machine out of it. And then then we were assigned a task that if we have also an attached data disk, how we can migrate it completely to the other virtual machine. We also checked how to do migration from one subscription to the other subscription. And we also talked about managed and unmanaged disk. Managed disk simplifies the management and maintenance of the virtual machine disk. Azure takes care of the underlying infrastructure, whatever it has to be done. But whereas earlier if we used to have unmanaged disk, it is a traditional storage account, and the user is responsible for management and the maintenance. That's it, sir. Okay. Thank you, Swati, for the recapitulation part. So yesterday we talked a lot about static website hosting, and we even talked about that Storage Explorer, one of the best application that Azure has given to us. That helps us in many ways. For example, migration, for example, management, for example, monitoring. So these are the things that we can do using that Storage Explorer application. And apart from it, we even talked about managed and unmanaged disk. Okay. So for today's class, we'll be focusing on two concepts, and the first of the concept would be Azure file sync. Okay, first let us understand that what this Azure file sync is all about. So Azure file sync is just a service that has been provided by Microsoft Azure that enables us to synchronize and centralize our files from on-premises Windows Server environment to Azure file shares.
So what does it say exactly? It means that if suppose we want to, so basically the Azure file sync, it's only applicable on Windows virtual machine. I will let you know that how to configure all these stuffs over there. So for example, this is one of your VMs. This is your Windows VM. Okay. Whatever data you have over here on this particular Windows VM, if suppose you want to synchronize, to the cloud, this one would be your Azure file share. Okay, so whatever things you want to keep it over here in sync with this Azure file share, we can do it using the Azure file sync. So for example, if suppose we want to leverage both our internal storage means whatever storage we have been assigned. For example, let's suppose say there are 100 GB disk space in our VM. Okay, if suppose there is 100 GB disk space available on our VM, and we want to use this one also and we want to use this one also, but they should always be in sync. So what we will be doing today is that we will be configuring an Azure file sync in one of our Windows virtual machine, and we will see that what are the things that happen, that how do we really sync our data from the Windows virtual machine to our Azure file share. For that, there are various concepts that how do you really want to store the data. Okay. So it is particularly useful for the organization that want to leverage the benefits of cloud storage and while still maintaining some data locally. It means that if suppose you want to have some data locally present over on the virtual machine, I mean on this particular virtual machine, then usually the clients go for this Azure file sync. They will be wanting some data to be present over here and the rest of the data over here. So for this purpose, we go for a concept of cloud tiering. Okay. Before that, what's the main use of Azure file sync? So first of all, it's the synchronization part. So the Azure file sync allows us to create Azure file share in our Azure storage account. Okay, so this Azure file share will be created in our Azure storage account. Okay, and then we establish a sync relationship with one or more on-premises file servers. Okay, and these VMs are actually our on-premises file server. So any changes made to the files and the directories on the on-premises server are automatically synchronized to the Azure file share. Okay, so it means that any changes that happens on our virtual machine, it is going to be synced with the Azure file share and we'll be getting our updated data as soon as any data is getting changed. Okay, next is the cloud tiering. Yes. Do you want to say anything, Sneh? Anyone I guess someone raised the hand. Snehil, No, yeah. Acha. Okay, so this is what's the basic use of the Azure file sync. So there are various other bigger aspects of it, but we will be looking onto the grassroots things that how do we really configure it and what's the exact use case for it. So from the other point of view, if suppose you talk about data protection and disaster management, it even helps in that cases. For example, by using Azure file sync, we can implement a robust data protection and disaster recovery strategy. For example, our data is already synchronized to Azure, so it acts as an offsite backup. So all this data from our virtual machine will be acting as like an these are basically the live server, but the Azure file share, whatever the sync process is going on the backend, so this acts as an this acts as an what do you say offsite backup in case of disaster or data loss.
even in our on-premises environment, we can still restore the files from the Azure file share. Okay. Now talking about how fast do we access all these things. So users generally access their files locally, even though some files are tiered. I mean, these basically files may be tiered to the Azure. So what I really mean by using the term cloud tiering is that, so cloud tiering is again a very important concept for this Azure file sync. So this cloud tiering is basically a data management feature. It basically allows us to optimize storage usage in hybrid cloud environment. So this comes under a hybrid cloud environment because we are leveraging both with the Windows virtual machine local storage and with also the Azure file share. Okay. So basically, what does it say? In cloud tiering, we have two kind of a policy that we follow. First one is volume policy. In cloud tiering, we generally follow two kind of stuff. That is the volume policy, and the second one is date policy. I will let you know about both the policies, but mostly what this cloud tiering means inside, if suppose we choose the volume policy, so what it defines basically what is the maximum size of the volume that you want to keep free on the on-premises setup. For example, if suppose I say the volume policy, let it be 80%. So it means that at any given point of time, our virtual machine, if suppose it's 100 GB, so the 20 GB would be kept, and the 80 GB of the 80 GB of the memory would be just stored as a reference over here. Okay. I will be shown all the 100 GB of the files over here, but the only 20 GB would be kept as an on-premises, and the rest 80 GB would be kept as a reference. Okay, I will be getting a mark over there that there is some files, but there will be some cross-marked or check-marked over there that these files are currently present on your all are present on your Azure file share, but you will be getting the reference over here. So whenever we tap on that, suppose you go to the properties of that particular file, you will see that there is the file, but the size of the file on disk is 0 byte, because we have enabled the cloud tiering, and that too we have chosen the volume policy. That means the 80% of my data over my on-premises setup should always be free. Okay, so the 20% will be filled up, and the 80% will be over there, but it will be in form of the just reference. You will be shown with the exact thing that what you have uploaded over here. Okay, and the whole of the data part would be stored over the Azure file share. So when we tap on the reference things, the whatever files that are kept as a reference, suppose we double click on it, it immediately loads up the file, downloads the file from the Azure file share, and it shows up the content of that particular file. We are going to see that as well. Okay. Then the second one is that date policy. So this date retention policy, it says that it set a rules and guidelines and defines how long specific type of data should be retained or kept within an on-premises setup. These policies are crucial for compliance, legal and regulatory reasons, as well as for efficient data management. So we won't be using the data policy for the for today, but you need to know that these are the two kind of policy that are generally used: the volume policy and the date policy. Okay. So this cloud tiering is also a very optional thing, because if suppose some client comes up and says, I have enough volume in my virtual machine, you don't need to enable cloud tiering. Okay, so it actually it's an optional thing, but suppose some clients comes up and says that I have a very limited storage on my virtual machine as well, and I want to configure Azure file sync over there. So how do I do that? So we will be applying the cloud tiering cloud tiering concepts over there as well. Clear, everyone?
Are we on the same page? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But the only thing about Azure File Sync is that it is only applicable on Windows VM. Okay, it's only applicable on Windows VM. So now we'll be following step-by-step process that how do we really configure a Azure File Sync on a Windows virtual machine. Clear, everyone? Yes, Yes. sir. Yes. Chalo. So I will so for the steps part also, if suppose I write it down while making it up, then it will be very, very easy for you. Okay. So should I erase it, everyone? Yes, sir. Okay, perfect. The steps to create a Azure File Sync are very crucial. So please be in sync with me as well. Otherwise, you will forget that what I did. Okay, so we go on to the first step. We'll be writing up the step and we'll be doing up the setups as well. Okay. So first of all, create a virtual machine. Okay, so I already have an resource group named storage RG. Okay, so the storage RG, let it be here. I will directly go to virtual machine. I will go to create. It should be storage RG. Virtual machine, let it be. Windows Sync VM. Let's take Windows Server 2022. Do we have? Yeah. Central US, no infrastructure redundancy required. Everything is correct. Let it be 3 GB. Username Silicon. Password is password 8123. Allow everything over here. Next, networking. It will create everything by its own. The virtual network is created by its own. There's a default subnet. There's a default public that it's being created. Okay. Next, management. Next, monitoring. Next, advanced. Next, tags. Next, review and create. Click on create. So our first step consists of create a Windows virtual machine. Our second step would be, let's wait for the deployment.
Okay, perfect. So our deployment is now ready. So state running, location Central US. This is the public IP that we have been allocated with. Virtual machine agent status is not ready. Okay, let's connect to this virtual machine. So this is the virtual machine. Add PC, silicon, and add it. Continue. So if suppose this is my virtual machine that I'm trying to log into it, and if suppose I go to the disk part, what disk I will be getting? This is a OS disk. this is the OS disk that I have been provided with, whatever size it is, let it be. Now what I will be doing is that I will be creating a new disk to it. Okay, let the disk name would be my sync disk. Okay, let the size be 4 GB only, and we'll be writing it over here that we have created a virtual Windows machine and attached a disk to virtual machine. Perfect. And click on save. Click on save. Successfully created disk. It's updating the virtual machine. So my disk, it's again a 4 GB premium SSD LRS that has been attached to my virtual machine for the moment. Let's wait over here. Click on yes. Let the server manager run complete all the configurations and all. Perfect. So it has completed itself. Now, if suppose I go to this PC, click on the this PC app. You can see I have a temporary storage of somewhere about 7 GB, and this is the Windows C that I have been provided. This is basically the OS disk that comes up with the OS disk, and this is just a temporary storage. It is not the disk that I have mounted for the moment. I will be mounting another drive over here, okay, of whatever disk that we have created right now. And remember one thing, we cannot do the Azure file sync for the C drive, because this is basically the OS disk. We cannot do anything for this. Okay, now first of all, let's go to the local server and so off कर देते हैं. We may require the internet connection. ठीक है. चलो. If suppose you go to the file and storage service, click on file and storage service. This is the Windows Sync VM. This is basically the disk of the OS. Okay, this is the server name. This is the server name. So I suppose I go to disks. How many number of disks should I get over here? See, this is the OS disk. This is the temporary disk that has been attached, and this is the 4 GB disk that I have created. Everyone,
ठीक है. So I will be now creating a drive out of it. How do I create a drive out of it? Click on new volume. Right click and click on new volume. Okay, I want to create a new volume / drive out of it. Click on next. ठीक है. ठीक है. I want to provide it on this particular VM. Click on next. Okay. So this will be my size of the disk. Click on next. The drive letter would be F. Okay. It would be an F drive for me. Click on next. Click on next. And click on create. So it's now completed. Okay. Now suppose I go to my, see everyone, this new volume F drive is what that we have created a particular volume, or rather a drive out of whatever disk we have attached. Okay, just write it down over here. Attach a disk to VM and create a volume out of it. Perfect. So now this part is completed, that we have created a volume. Okay. Now the next thing that we are going to do is that we will be creating a Azure file sync. We will be creating a Azure file sync. Okay. I will be opening this in a new tab. Okay. I will search down for Azure file. कहीं दिख रहा है क्या Azure file sync? Anyone? Marketplace. Chalo, let's create on Azure file sync. Okay. So this says that deploy Azure file sync. I will make it in the same resource group, storage RG, and let's keep the name as my file sync. Perfect. Okay. My file sync, again, it's in central US, storage RG, free trial. Next networking, all networks, next tags, next review and create. Wait for the deployment part. So which storage account feature does Azure file sync uses in the backend? ये तो पता चल गया ना कि ये backend में Azure file share को ही use करता है. Go to resources. अब इसके resources में हम आएंगे. Then in the sync path, हमें पता चलेगा कि sync groups क्या है, registered servers क्या है, and whatever registered server. ठीक है. तो पहले इसे बताना पड़ेगा कि that तुम किस सर्वर से रजिस्टर होना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द टाइम बिंग वी हैव ओनली वन सर्वर, लेकिन हमारे पास मल्टीपल सर्वर भी हो सकते हैं. ठीक है. सो आई गो टू द रजिस्टर्ड सर्वर पार्ट. Okay, to register a server, download the Azure file sync agent and install it on all servers you want to sync. After finishing the agent install, use the server registration utility that opens the register server in this storage sync service. ठीक है, ये बोल रहा है कि हमें Azure file sync agent को install करना पड़ेगा. Let's go to this new tab. So यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन है. So I have to install this Azure file sync agent on my virtual machine. तो मैं यहाँ से लिंक को कॉपी करूंगा, Command C, and I will paste it on Edge over here.
Start without data, continue without this data, confirm. चलो, अरे so let's download it over here. Click on download. So we have which server? Windows 2022, I guess. यही था ना? So Yes. whatever Windows machine you have, if suppose it's 2016, 12, 2019, anything, you can just check mark it and click on next. It will start installing. Chalo, it has installed. Click on open file. Next, 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 install. ठीक है. Let it install over here. In the meantime, we redefine the steps that we have done. हमने क्या किया फिर थर्ड स्टेप पे? अरे बताओ यार, अभी तुमने तो तुरंत देखा. Created an Azure file sync. Create a Azure file sync. हमने Azure file sync किया. फोर्थ पे क्या किया हमने? Installed the agent on the virtual machines. हमने अभी तक ये किया है. अच्छा, अब बैकएंड में हमें ये तो हमें पता है कि Azure फाइल सिंक बैकएंड में फाइल शेयर को यूज करता है, तो हमें एक फाइल शेयर भी बनाना पड़ेगा. ठीक है. सो आई गो बैक टू माय Azure पोर्टल. तो उसके लिए हमें स्टोरेज अकाउंट चाहिए. ठीक है. सो आई विल क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट. माय फाइल सिंक स्टोरेज. ठीक है. माई फाइल सिंक स्टोरेज. अगेन ये इसे LRS रहने देते हैं. सेंट्रल यूएस पे डिप्लॉय करेंगे. नेक्स्ट एडवांस्ड, नेक्स्ट नेटवर्किंग, डेटा प्रोटेक्शन, एन्क्रिप्शन, टैग्स, रिव्यू, क्रिएट. ठीक है. मीन टाइम ये देखते हैं कहाँ तक आया है. ठीक है. on the fifth create a storage account and then a फाइल शेयर. अभी तक फाइल शेयर हमने बनाया नहीं है, बट अभी जाएंगे बना लेंगे. जैसे ये स्टोरेज अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर होता है ना फाइल शेयर. स्टोरेज अकाउंट के अंदर ही हमारा कंटेनर्स होता है, फाइल शेयर्स होता है, टेबल्स एंड क्यूज होता है. तो हमें स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये Azure फाइल सिंक बैकएंड में फाइल शेयर को ही यूज करता है. ठीक है. लेट अस चेक. डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस है. ठीक है. चलो ये फिनिश हो गया. ठीक है. लेट दिस फिनिश अप. चलो, दिस इज द Azure फाइल सिंक एजेंट एप्लीकेशन. ठीक है. क्लिक ऑन ओके. ठीक है. Azure क्लाउड, साइन इन एंड रजिस्टर दिस सर्वर. इस सर्वर को अब मेरे को एज अ रजिस्टर्ड सर्वर बनाना है फॉर माय Azure फाइल सिंक. सो इसे बताना पड़ेगा कि आई एम साइनिंग एज एन क्लाउड सोल्यूशन प्रोवाइडर. यस. ये हमें एक टेनेंट आईडी मांगेगा. ओके. ये हमें एक टेनेंट आईडी मांगेगा. दिस टेनेंट आईडी इज अवेलेबल ऑन Azure एक्टिव डायरेक्टरी, AAD. ठीक है. यहाँ पे आना है. यहाँ देखो हमारे पास एक टेनेंट आईडी है. सबको दिख रहा है टेनेंट आईडी
inside my Azure Active Directory, you have to copy this tenant ID और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है. Click on sign in. Click on sign in. Go next. Click on sign in. Your account password is incorrect. What was my password? Give me a minute. Ah. What the code? The code is 0697643. Click on verify. Chalo. So which subscription I want to go for? This is my subscription. Free trial. ये कौन से resource group में रहेगा? This would be in storage RG. And what is this storage sync service? तो हमने जो my file sync service बनाया था, ये उसके अंदर रहेगा. Click on register. अब देखते हैं क्या होता है. तो ये कनेक्टिविटी टेस्ट कर रहा है अपने एंड से. चलो पास, यू आर ऑल सेट. ठीक है, अब मैं इसे क्लोज करता हूँ. सो नाउ वी हैव रजिस्टर्ड दिस सर्वर. ठीक है, अब रजिस्टर हमने कैसे किया, इसे लिख देते हैं. कॉन्फ़िगर द agent by sign in and tenant ID. ये tenant ID हमें कहाँ से मिला था? Azure Active Directory से. ठीक है, चलो अब यही भी हमारा काम हो गया है. नो, अब सपोज पहले हम काम करते हैं, हम अपने स्टोरेज अकाउंट पे एक फाइल शेयर बना ही लेते हैं. ठीक है, दिस इज माय कंटेनर. I will go back to my file shares. I will create a new file share जिसका नाम रहेगा my file share. ठीक है, नेक्स्ट बैकअप में ऑलरेडी ये एक बना हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट रिव्यू. रनिंग फाइनल वैलिडेशन. चलो क्रिएट कर देते हैं. चलो ये तो यहाँ पे रेडी हो रहा है. अब हम चलते हैं अपने व्हाट डू यू से, अपने Azure फाइल सिंक पे. क्लिक ऑन, अच्छा ये माई फाइल सिंक यही था. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रजिस्टर्ड सर्वर पे. हमने एक सर्वर को रजिस्टर किया था, यही सर्वर था क्या? विंडोज सिंक VM. दिस वाज द सर्वर.
पहले ये कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमने जैसे सर्वर को रजिस्टर किया, देन वी आर गेटिंग दिस सर्वर पर्टिकुलरली। ठीक है, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये ऑनलाइन है, हमने क्या क्लाउड टियरिंग रिकॉल, ये सब बाद में देखेंगे कि हमने क्या क्या किया है। क्लिक ऑन क्लोज। ठीक है, अब हम बनाएंगे सिंक ग्रुप्स। सिंक ग्रुप, हमारे पास कोई सिंक ग्रुप बना नहीं है, ठीक है, कि ये किस सर्वर से सिंक होगा, हमारा ग्रुप क्या होने वाला है। क्लिक ऑन क्रिएट सिंक ग्रुप। ये हम नाम दे देते हैं माई सिंक ग्रुप। फ्री ट्रायल, जो स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी बनाया है, क्लिक ऑन दिस वन। जो अज्योर फाइल शेयर हमने बनाया है, दैट इज माई फाइल शेयर। ठीक है, क्लिक ऑन क्रिएट। चलो, तो हमारा माई फाइल सिंक ग्रुप तो क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, वेट करते थोड़ा। चलो, अब हमारे पास माई फाइल शेयर जो इसका एंड पॉइंट था, ये हम हमारे सिंक ग्रुप में ऐड हो गया है। अब हम सर्वर के एंड पॉइंट्स को ऐड करेंगे कि हमारे कौन से सर्वर के एंड पॉइंट पे हम इसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो क्लिक ऑन ऐड सर्वर एंड पॉइंट। रजिस्टर्ड सर्वर, मेरा एक ही सर्वर अभी तक हमने रजिस्टर किया है, तो यही सर्वर यहाँ पे आएगा। और ये पाथ पूछेगा कि विच पाथ डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर, मतलब कौन से वॉल्यूम को यू वांट टू कॉन्फ़िगर। सो हाउ मेनी वॉल्यूम्स वी हैव, हमने कौन सा वॉल्यूम को बना के रखा है यहाँ पे, एफ ड्राइव को बना के रखा है कि दैट यू विल बी एक्टिंग एज माई बैकअप और द सिंक ड्राइव। तो हमें बस यहाँ पे इसका नाम दे देना है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एफ ड्राइव, तो हम यहाँ पे बस लिखेंगे एफ कोलोन। ठीक है, अभी ये क्लाउड टियरिंग अभी ये सब डिसेबल्ड करके रखते हैं, अभी ये सब बाद में देखेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन क्रिएट। चलो देखते हैं क्या होता है। वेट फॉर सम टाइम। चलो, सो अब हमारे पास सर्वर एंड पॉइंट्स भी रेडी हैं कि ये विंडोज सिंक वीएम के एफ ड्राइव को अपने पास सिंक करके रखेगा। ठीक है, तो अब काम करते हैं, अपने फाइल शेयर पे चलते हैं। अपने फाइल शेयर पे चलते हैं, क्लिक ऑन ब्राउज। तो अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तो वहां भी कुछ फाइल नहीं था, यहाँ भी कुछ फाइल नहीं था। हम एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ फाइल अपलोड करते हैं पहले। आई विल बी अपलोडिंग सम फाइल फ्रॉम माई, चलो ये क्लिक कर देते हैं, क्लिक ऑन अपलोड। आई गो टू द न्यू वॉल्यूम, ये अभी एम्प्टी है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। चलो यहाँ पे कुछ भी न्यू वॉल्यूम एफ। ठीक है, अब हम इस न्यू वॉल्यूम एफ में हमने वहां कुछ अपलोड किया, वो यहाँ पे तो आया नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ कॉपी करके देखते हैं, क्या कॉपी किया जाए। चलो ये 3 स्क्रीनशॉट कॉपी करते हैं। कमांड सी, पेस्ट करते हैं। ठीक है, सो वी हैव 3 स्क्रीनशॉट कॉपीड ओवर हियर। ठीक है, आई विल रिफ्रेश इट, आई विल रिफ्रेश इट एंड अब हम देखते हैं कि हमारा ये फाइल शेयर में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लिक ऑन रिफ्रेश, सी अपलोड हो गया ना, मतलब हमारे सर्वर से ये डायरेक्टली यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल सर्वर भी हो, तो मल्टीपल फाइल शेयर सिंक हम रजिस्टर्ड सर्वर करके
हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को उसे बता सकते हैं कि दिस इज द वॉल्यूम दैट यू आर गोइंग टू बी शेयर्ड अक्रॉस दी वर्चुअल मशीन एंड द क्लाउड, और क्लाउड में तुम एक फाइल शेयर में यहाँ पे स्टोर होके रहोगे. सो देन इट acts as an what do you say, a backup on site, Azure backup for us, for example some disaster management kind of and stuff. ठीक है. सो हमने यहाँ पे हमारा 3 फाइल है और यहाँ भी हमारा वो 3 फाइल यहाँ पे अपलोड हो गया, बट यहाँ पे जो हमने अपलोड किया वो यहाँ पे नहीं आ रहा है. सो इट्स बेसिकली अ वन वे सिंक फॉर द टाइम बिंग. This is a one-way sync that is synced from the virtual machine to the Azure cloud storage, and that too on the file share. Clear everyone? Yes, sir. ठीक. Yes, sir. चलो अब थोड़ा क्लाउड टियरिंग के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्लाउड टियरिंग होता क्या है, हम क्या बोल रहे थे, रेफरेंस है ये है. ठीक है. सो इफ सपोज आई क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, so this has size on disk as 768 KB. ठीक है, चलो बढ़िया है, कोई नहीं. आई विल बी गोइंग बैक टू माई माई सिंक ग्रुप पे हम चलते हैं, हम इस पे चलते हैं. ठीक है. सो दिस वाज माई सिंक ग्रुप. चलो इधर चलते हैं, रजिस्टर्ड सर्वर पे चलते हैं. ये हमारा रजिस्टर्ड सर्वर था. क्लिक ऑन रिफ्रेश. अभी तक हमने क्लाउड टियरिंग यहाँ पे ऑन कुछ नहीं किया नहीं था. ठीक है. तो अब इस क्लाउड टियरिंग को ऑन करने के लिए आई गो बैक टू माई सिंक ग्रुप, क्लिक ऑन माई सिंक ग्रुप. ये क्लाउड टियरिंग इज करेंटली डिसेबल्ड. ठीक है. अब इसे हमें इनेबल करना है. ये इनेबल, ठीक है. तो क्लिक ऑन क्लाउड टियरिंग सेटिंग्स, क्लिक ऑन क्लाउड टियरिंग सेटिंग्स, क्लिक ऑन इनेबल. ठीक है. अब ये पूछता है कि आपको कौन सा पॉलिसी लगाना है, वॉल्यूम फ्री पॉलिसी लगाना है या फिर डेट पॉलिसी लगाना है. तो फॉर द टाइम बिंग हम व्हाट आई विल डू, आई विल इनेबल द वॉल्यूम फ्री पॉलिसी. ठीक है. इसे पढ़ो पहले, ये कहता क्या है. क्लाउड टियरिंग ट्रांसफॉर्म्स योर सर्वर एंड पॉइंट इनटू अ कैश फ्रॉम योर फाइल्स इन Azure file share, decreasing the amount of local storage required while keeping the performance of an on-premises file server. ठीक है. तो ऑन प्रेमाइसेस फाइल सर्वर को हमेशा एक बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड वे में रखने के लिए वी विल बी फॉलोइंग दिस क्लाउड टियरिंग मैकेनिज्म. जिससे होगा क्या, हम टियरिंग पॉलिसीज में अभी हमने वॉल्यूम फ्री स्पेस पॉलिसी रख दिया है कि मैं इसे बोलता हूं कि हमेशा अपने पास 20% फ्री स्पेस हमेशा रखो. ठीक है. तो मैं इसे कर देता हूँ 99% हमेशा अपने पास फ्री रखो, टू जस्ट लेट यू नो गाइज कि वो टियरिंग पॉलिसी करता क्या है. ठीक है. तो मैं बोला कि हमेशा 99% ऑफ द फाइल शुड बी, 99% स्पेस इनसाइड योर डिस्क शुड बी फ्री. ओके. क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन सेव. आई हैव डन दिस 99% जस्ट फॉर रेफरेंस. जनरली इसे 10%, 20%, 30% रखा जाता है कि उतना ही खाली रखना है. ठीक है. लेट इट कॉन्फ़िगर. क्लाउड टियरिंग अभी इनेबल हो रहा है. अच्छा, चलो अब इधर हम लोग 7th स्टेप क्या था. Configure the agent and sign in and tenant ID, then create a sync group. Sync group के बाद add the server endpoint. ठीक है. हमने सर्वर एंड पॉइंट ऐड किया, उसके बाद हमने अभी हमने टियरिंग इनेबल किया है. चलो, क्लाउड टियरिंग इज नाउ अपडेटेड. अब हमें हमेशा अगर मैं दिस पीसी में आऊं तो दिस पीसी में आई शुड ऑलवेज बी अवेलेबल विथ 99% ऑफ फ्री स्टोरेज. ठीक है. अब मैं इसके अंदर आता हूं तो तुम देखोगे इसके ऊपर कुछ मार्क बन गया है. ठीक है. कुछ मार्क बन गया है. लेट अस चेक पहले ये क्या है. सी,
इसने अभी से ही इसके बस रेफरेंस को रखा है। सी द साइज ऑन द डिस्क, इट्स जस्ट 0 बाइट। ये अपने 99% को फ्री रखने के लिए इट हैज जस्ट केप्ट अ रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल, स्क्रीनशॉट 2023/7/13 एट इतना। इसने इसके साइज ऑन डिस्क को 0 बाइट कर दिया, बट स्टिल इट्स शोइंग मी द फाइल, इवन दो इट्स 0 के भी, बट स्टिल इट्स शोइंग। ठीक है, ये होता इसलिए है ताकि इट क्रिएट्स अ सेंस दैट दीज फाइल्स आर ऑलवेज अवेलेबल विथ मी, बट द साइज ऑन द डिस्क इज करेंटली क्लियर, बिकॉज हमारे पास इसका रेफरेंस कहाँ है, इसका रेफरेंस हमारे पास फाइल शेयर पे पूरा एक्चुअल फाइल पड़ा हुआ है। तो वेन एवर आई विल बी क्लिकिंग ऑन इट, जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, ये फाइल शेयर से फाइल कॉपी करके मुझे दिखा देगा। सी, इसने मेरे को फाइल शेयर से फाइल कॉपी करके दिखा दिया। अब अगर हम इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, अब क्योंकि ये डाउनलोड कर लिया, देन साइज ऑन द डिस्क गेट्स द एक्चुअल साइज 328 KB। आया समझ में क्लाउड टियरिंग का मतलब क्या हो गया? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा क्लाउड टियरिंग एंड वॉट एवर वी टॉक अबाउट, व्हाट यू से, अज्योर फाइल सिंक। तो हम मल्टीपल सर्वर्स में भी ऐसे फाइल सिंक करके रख सकते हैं। ठीक है, अज्योर फाइल सिंक इज क्लियर एवरीवन? These are the steps to follow to create a Azure file sync. अब इसे डिलीट करना भी उतना ही मुश्किल है। ठीक है, अब जैसे जैसे तुम प्रोसेस किए हो वैसे वैसे तुम्हें बैकवर्ड ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, तब जाके वो तुम्हारा Azure फाइल सिंक वो जो है ना वो तुम्हारा डिलीट होगा, नहीं तो वो वर्चुअल मशीन डिलीट ही नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, पहले यहां से इसको हटाते हैं। हमने सबसे लेटेस्ट में हमने सिंक ग्रुप बनाया था। ठीक है, सिंक ग्रुप। तो सबसे पहले मैं उससे पहले हमने एक एंड पॉइंट बनाया था। ठीक है, तो मैं इस एंड पॉइंट को डिलीट करता हूं पहले। डिलीटिंग अ सर्वर एंड पॉइंट इम्प्रॉपरली मे लीड टू डेटा लॉस। ठीक है, चलो, क्लाउड ट्रेनिंग इनेबल्ड है। ठीक है, आई एम रेडी टू डिलीट दिस सर्वर एंड पॉइंट, क्लिक करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े हम लोग, वैसे वैसे हमें पीछे भी बढ़ना पड़ेगा ताकि हम ये पूरा वर्चुअल मशीन को डिलीट कर सकें। चलो, पहले सर्वर एंड पॉइंट डिलीट हो गया, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सर्वर एंड पॉइंट नहीं है। बैक चलते हैं। ठीक है, चलो, सर्वर एंड पॉइंट यहाँ से चला गया। तो अब हमें इस सिंक ग्रुप को डिलीट करना है, ये क्लाउड एंड पॉइंट या जो भी था। ठीक है, पहले इस क्लाउड एंड पॉइंट को डिलीट करते हैं। चलो, क्लाउड एंड पॉइंट इज ऑल्सो डिलीटेड। अब इस माई सिंक ग्रुप को डिलीट करते हैं। चलो, सिंक ग्रुप भी डिलीट हो गया। अब हमने क्या किया था, स्टोरेज अकाउंट बनाया था, उसके अंदर फाइल शेयर बनाया था। तो इससे बढ़िया एक काम करते हैं, हम रिसोर्स ग्रुप पे अब अंदर जाके, क्योंकि अब हमारा फाइल सिंक ये हो गया है। अच्छा, ये माई फाइल सिंक अभी भी है क्या? अच्छा, ठीक है, ये माई फाइल सिंक है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। स्टोरेज सिंक सर्विस, लेट डिलीट इट। Can't be deleted only if there are no servers attached to this sync service। क्या बोल रहे हैं? Storage sync service, my file sync cannot be deleted if there are no servers। Can be deleted only if there are no servers attached to this। अच्छा, हमने सर्वर तो इस पर अटैच किया ही नहीं अभी। सिंक ग्रुप्स में हमारे पास कुछ नहीं है, रजिस्टर सर्वर्स में भी हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा,
ये रहा हमारा रजिस्टर्ड सर्वर, हमने इसे तो अनरजिस्टर किया ही नहीं। क्लिक ऑन अनरजिस्टर, ठीक है। अब इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन अनरजिस्टर। चलो, हमने रजिस्टर सर्वर को भी डीरजिस्टर कर दिया। अब हम इसके ओवरव्यू में जाते हैं। अब हम इस माई फाइल सिंक सर्विस को क्लियर कर देते हैं। चलो, अब ये करने दे देगा। ठीक है, हम अपने होम पे चलते हैं। तब तक अपने स्टोरेज आरजी पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है वो यहाँ पे बता देगा। हमारे पास एक माई सिंक डिस्क है, माई फाइल है, ये सब है। विल बी जस्ट डिलीटिंग द रिसोर्स ग्रुप, ये सब कुछ डिलीट नहीं करेगा एक्सेप्ट द बैकअप। ठीक है, कॉपी दी, अप्लाई फोर्स डिलीट, और ये जो जो चीज डिलीट कर सकता है वो अपने एंड से डिलीट कर देगा। क्लिक ऑन डिलीट। चलो, ठीक है। अब हम एक अब हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो एवरीवन, ठीक है, दीज आर द स्टेप्स टू क्रिएट अजोर फाइल सिंक। अपने लैब सेशंस में आज तुम्हें अजोर फाइल सिंक क्रिएट करना होगा। ठीक है, सो आई एम रबिंग दिस ऑफ। चलो, अब एक नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। स्नैपशॉट, ठीक है। हमारे पास बैकअप के, फॉर एग्जांपल माइग्रेशन के हमने कल एक मेथड को पढ़ा था जिसको हमने स्टोरेज एक्सप्लोरर से हमने बेसिकली डिस्क को ही कॉपी पेस्ट कर दिया, तो और वी क्रिएटेड अ वीएम आउट ऑफ इट। ठीक है, सो व्हाट वाज द लिमिटेशन फॉर दैट स्टोरेज एक्सप्लोरर पार्ट कॉपी पेस्ट? कैन एनीवन से what is the basic requirement for that? If suppose I want to do the I want to do migration within the subscription or outside the subscription as well, what is the basic requirement? अरे बताओ यार, what was that basic requirement? हमारा सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या था स्टोरेज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए? द बेसिक रिक्वायरमेंट वाज, हाँ, नहीं नहीं नहीं, द बेसिक रिक्वायरमेंट वाज दैट कि वी एटलीस्ट नीड टू हैव द क्रेडेंशियल्स ऑफ द अज्योर अकाउंट और रादर द अज्योर पोर्टल। हमारे पास अज्योर पोर्टल का जब तक क्रेडेंशियल्स ही नहीं होगा, देन हाउ वुड आई कॉन्फ़िगर ऑल दीज थिंग्स ऑन माय अकाउंट, ऑन माय स्टोरेज एक्सप्लोरर? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आई लॉग्ड इन वाया माई अकाउंट एंड देन समवंस अदर्स अकाउंट, तभी हमने वहां पे ये कर पाया। व्हाट इफ द क्लाइंट डिनाइज यू टू गिव यू द क्रेडेंशियल, बोला कि नहीं यू डोंट हैव टू डू इट वाया द स्टोरेज एक्सप्लोरर, तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? ठीक है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है स्नैपशॉटिंग का। ठीक है, ये स्नैपशॉटिंग क्या है मैं बताता हूँ, बट बिफोर दैट लेट्स सी क्या क्या डिलीट हो चुका है। अच्छा, ये सब आईपी डिलीट नहीं हुआ है, हमारा वीएम डिलीट हो गया है, बट डिलीट करते हैं। Failed to delete was cancelled or suppressed by operation delete public operation। अच्छा अच्छा, एक ऑलरेडी एक ऑपरेशन चल रहा है। ठीक ठीक ठीक, ये ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, चलो, कोई नहीं, आई विल गो बैक टू माई स्टोरेज आरजी। ठीक है,
अब एक जल्दी से एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे उबंटू सर्वर को, और उसे मैं एज अ वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है। सो आई विल बी गिविंग रिमोट कंट्रोल टू whomsoever I say, ठीक है, and you have to create a virtual machine Ubuntu and create a configure a web server over here. मृत्युंजय मृत्युंजय यस मृत्युंजय सर। चलो यस सर। मृत्युंजय, आई एम गिविंग यू द रिमोट कंट्रोल मेरे इसी रिसोर्स ग्रुप में, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन एंड दैट टू ऑफ काइंड उबंटू। मैं तुम्हें बताऊंगा, बट आई एम गिविंग द रिमोट कंट्रोल, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो, क्या नाम है? मृत्युंजय। मृत्युंजय, you have the remote control at the moment, so what you can do, चलो directly click on virtual machines, चलो create Azure virtual machine, चलो resource group storage RG, ठीक है, इसे लिख दो my ubuntu, ठीक है। रीजन नीचे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, पहले नीचे आ जाओ, इमेज को सेलेक्ट कर लो ना पहले, उसके बाद सेंट्रल यूएस अपने आप आ जाएगा। नीचे आ जाओ, इमेज पे आ जाओ, इमेज पे आ जाओ, ठीक है। 24 इसको 3 GB कर दो, पहले 3 GB कर लो, अपने आप सेंट्रल यूएस ले लेगा। स्टैंडर्ड ये साइज, हाँ क्लिक करो, ड्रॉप डाउन करो। अरे ये जो 1 GB मेमोरी है ना, इसको 3 GB कर दो। हाँ, क्लिक ऑन दैट 3.5, क्लिक ऑन द 3.5 स्टैंडर्ड DS1 vCPU 3.5 GB। हाँ हाँ हाँ, उसे चलो अब ऊपर जाओ, अब ऊपर जाओ, देखो सेंट्रल यूएस आ गया होगा। नहीं आया? अच्छा 1 मिनट रुको, डोंट कंट्रोल इट, डोंट कंट्रोल इट। 3.5 GB। सर नेटवर्क स्लो है इसीलिए थोड़ा लेट दिखा रहा है मेरे को। अच्छा नेटवर्क स्लो है, जी सर। अच्छा 1 मिनट रुको। चलो सेंट्रल यूएस आ गया, हाँ ये आ गया, हम पासवर्ड से करेंगे, ठीक है। सिलिकन पासवर्ड @123, पासवर्ड @123, सारे पोर्ट्स अलाउ कर देते हैं। एवरीवन सब ये सही है ना? फ्री ट्रायल स्टोरेज आरजी माई उबंटू सेंट्रल यूएस, ठीक है। चलो यस नेक्स्ट, सर। ठीक है। नेटवर्किंग ये सब कुछ अपना खुद एक नया बना लेगा, ठीक है। माई उबंटू आप आईपी बेसिक्स, नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस्ड, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। कौन सा वैलिडेशन फेल कर गया यार? अच्छा चलो रिव्यू एंड क्रिएट। कैन नॉट डिप्लॉय टू रिसोर्स ग्रुप स्टोरेज आरजी डिलीटिंग, अच्छा। यस सर, वही बोल रहा था वो तो डिलीट हो रहा है, वो कैसे कट करें? अरे ये पूरा स्टोरेज आरजी डिलीट होगा नहीं, क्योंकि इसके पास एक बैकअप वॉल्ट बना हुआ है। Oh, यस shit. सर, वो नहीं सर, प्रोसेस तो चल रहा है ना तो हाँ प्रोसेस चल रहा है, वो डिलीट तो होगा नहीं, लेकिन ये सर्वर को तो लग रहा है कि अच्छा ये तो ऑलरेडी डिलीटेड है, मतलब कि डिलीट प्रोसेस में है, अब इसमें ये नया वर्चुअल मशीन बना रहा है। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, मैं होम पे चलता हूँ, एक रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ। इस रिसोर्स ग्रुप का नाम देता हूँ स्नैपशॉट आरजी सेंट्रल यूएस, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट क्रिएट, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप बन गया मेरा
स्नैपशॉट RG। अब मैं चलता हूँ होम पे और क्रिएट करता हूँ वर्चुअल मशीन क्विकली। आज और वर्चुअल मशीन फ्री ट्रायल स्नैपशॉट RG। वर्चुअल मशीन का नाम रहेगा मेरा माई Ubuntu। ठीक है, ठीक है। दिस शुड बी 20.04। ठीक है, 3.5 GB। इट शुड बी पासवर्ड। यूजर नेम वुड बी सिलिकन। देखा, वो फेल कर जाता, मेरे को पता था। सिलिकन पासवर्ड @123। अगेन पासवर्ड @123। क्लिक ऑन एवरीथिंग। नेक्स्ट डेस्क, नेक्स्ट नेटवर्किंग। ये सब कुछ खुद से बना लेगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू ऑन क्रिएट। अच्छा, इसका स्टोरेज वो डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको जाकर डिलीट करते हैं। चलो, वैलिडेशन पास हो गया, लेट्स क्रिएट इट। उसे क्रिएट करते हैं। सबमिटिंग डिप्लॉयड, डिप्लॉयमेंट सबमिट हो रहा है। क्लिक ऑन स्टोरेज अकाउंट, माई सिंक स्टोरेज अकाउंट। पहले फाइल शेयर को डिलीट कर दो। अच्छा, लॉक को हटाना पड़ेगा। अच्छा, लॉक हटा दूंगा। लेट इट डिप्लॉयड फर्स्ट। ये व्यू रिसोर्स लॉक ये क्लिक नहीं हो रहा है ना। अरे भाई, लॉक हटा दिया मैंने। चलो, ये हमारा VM रेडी हो गया। आई विल बी गोइंग बैक टू द रिसोर्स। ये हमारा पब्लिक IP है। जस्ट हिट दिस पब्लिक IP। अब ये पब्लिक IP कुछ मेरे को थ्रो नहीं करेगा बिकॉज आई हैवंट कॉन्फ़िगर्ड द वेब सर्वर ओवर हियर। ठीक है, ठीक है। चलो, आई विल कनेक्ट टू दिस पब्लिक IP। कनेक्ट करता हूँ, कॉपी इट, कॉपी किया मैंने। गो टू टर्मिनल। ठीक है, आई विल डू क्लियर। ठीक है, पेस्ट करता हूँ। व्हाट वाज द कमांड फॉर कनेक्टिंग टू अ सर्वर वाया पासवर्ड? क्या था? -p। SSH-p। बस -p डाल दो, ये तुम्हें बता देगा कि हाँ करना क्या है। क्लिक ऑन यस। ठीक है, पासवर्ड डाल दो। पासवर्ड वाज पासवर्ड @123। क्लिक ऑन एंटर। चलो, आई एम इनसाइड माई Ubuntu। आई विल sudo सुपर यूजर बन जाता है पहले। क्लिक ऑन CD, रूट यूजर पे चलते हैं। क्लियर कर लेते हैं ताकि तुम लोग को दिख जाए। ठीक है, हमें इसमें अपाचे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो कमांड है apt install apache 2। स्पेलिंग गलत है यार, apache 2। क्लिक ऑन इंस्टॉल, यस। चलो, माई स्टोरेज RG में क्या क्या बचा है। ठीक है, चलो, एवरीथिंग इज क्लियर्ड अप ओवर हियर।
चलो ये हमारा यहाँ पे सर्वर तो रेड डिप्लॉय हो गया है, बस देख लेते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लिक ऑन रिफ्रेश। चलो सर्वर तो बन गया है। मैं काम करता हूँ अपने, क्या करूँ यहाँ से, ठीक है। मेरे को यहाँ पे बेसिकली कंटेंट लेके आना है, ठीक है। कंटेंट लाने के लिए हम एक कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। एक कमांड होता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। डाउनलोड सैंपल वेबसाइट, क्लिक ऑन दिस वन, ठीक है। ये फिट ऐप को डाउनलोड करता है, यहाँ पे डाउनलोड नहीं करेंगे। आई विल जस्ट कॉपी द लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। अब भी हम चलते हैं, एक काम करते हैं, सीडी कहाँ रहता है, वैर के अंदर, सीडी वैर के अंदर क्या होता है, www स्लैश, HTML। ठीक है। इसमें ls करते हैं, हमारा index.html है, इसको हटाते हैं, rm माइनस f index.html। चलो ये हमारा हट गया होगा, देख लेते हैं। चलो यहाँ पे कुछ है ही नहीं यहाँ पे। चलो एक काम करता है, एक हमारा कमांड होता है wget, और हमें यहाँ पे उस URL को पास कर देंगे, तो ये इस URL के कंटेंट को डाउनलोड कर लेगा अपने पास, ठीक है। ये देखो, अब हम ls करेंगे तो हमारे पास ये fitapp.zip है, तो इसे अनजिप भी करना पड़ेगा। अनजिप करने के लिए हम लिखेंगे अनजिप fitapp.zip, लेकिन उसके लिए हमें अनजिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम करेंगे apt install unzip, ठीक है। चलो ये इंस्टॉल तो कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या नाम था उसका, unzip fit app.zip। चलो अब हम ls करते हैं, तो हमारे पास एक मोबाइल ऐप, क्लियर करो यार, ठीक है। क्लिक ऑन ls, तो हमारे पास ये मोबाइल ऐप HTML टेम्पलेट करके एक फोल्डर बन गया है, ठीक है। हम इसके अंदर चलते हैं, cd कमांड c कमांड v, ठीक है। cp हम यहाँ के अगर हम यहाँ पे ls करें तो हमें ये सारा कंटेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, cp मतलब कॉपी करो एवरीथिंग फ्रॉम हियर, and just put it inside where html, sorry, where www/html, क्लिक ऑन एंटर, ठीक है। अब हम cd डॉट डॉट करते हैं, मतलब जस्ट प्रीवियस डायरेक्टरी में चलते हैं, आई विल डू द ls, सारा कॉपी यहाँ पे होके आ गया है। नाउ रिफ्रेश इट, सी माय वेबसाइट इज कॉन्फ़िगर्ड नाउ, फिट ऐप एवरीवन, अरे हो गया ना कॉन्फ़िगर। चलो वेब सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया विद ऑल माय कंटेंट्स। अब हम चलते हैं स्नैपशॉटिंग के कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। स्नैपशॉटिंग होता क्या है, ठीक है। ये माई उबंटू क्या था यार, हाँ माई उबंटू वर्चुअल मशीन था, ठीक है। इसके पास अपना एक पब्लिक आईपी है। आई गो टू द डिस्क मैनेजमेंट, मैं यहाँ पे सेटिंग्स में डिस्क की तरफ जाता हूँ। इस पे बोलता है कि इसके पास तो एक डिस्क है, माई उबंटू ओएस डिस्क, ये जो भी डिस्क है दिस इज द ओएस डिस्क। क्लिक ऑन दिस डिस्क, अब यहां देखो एक क्रिएट स्नैपशॉट का ऑप्शन है, ठीक है। क्रिएट स्नैपशॉट कुछ नहीं करता है, एट द पॉइंट टाइम जो ये डिस्क रहता है ना, उसका ये बस एक कॉपी बना के रखता है अपने पास। तो अगर तुमको इंटरव्यूअर पूछे कि हाउ मेनी, व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू कैन माइग्रेट और यू कैन टेक अ बैकअप ऑफ अ पर्टिकुलर ओएस डिस्क, सो तुम्हारे पास तो एक कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है फ्रॉम स्टोरेज एक्सप्लोरर, और सेकेंड ऑप्शन अब तुम्हारे पास आ गया कि आई कैन क्रिएट अ स्नैपशॉट, ठीक है। तो हम करते हैं क्रिएट स्नैपशॉट, क्लिक ऑन क्रिएट स्नैपशॉट। हम स्नैपशॉट आरजी में रहने देंगे, हम इसको बोलते हैं स्नैपशॉट उबंटू, ठीक है। ये सेंट्रल यूएस में रहेगा, ये जैसा है वो सब कुछ ऐसे रहेगा। नेक्स्ट इंक्रिप्शन, प्लेटफॉर्म मैनेज्ड की रहेगा, ठीक है। नेटवर्किंग, इनेबल पब्लिक एक्सेस, नेक्स्ट एडवांस, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट, ठीक है। तो स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है,
अगर मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, एनी वर्चुअल मशीन, उसके पास कुछ अगर ओएस डिस्क है या फिर एनी काइंड ऑफ एन डिस्क है, तो हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम स्नैपशॉट बनाते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम स्नैपशॉट बनाते हैं, तो मेरे पास एक डिस्क रेडी हो जाता है। ये डिस्क नहीं रहता, इट्स बेसिकली इनिशियली जस्ट अ स्नैपशॉट। अब हम इस स्नैपशॉट से डिस्क बना सकते हैं, इस स्नैपशॉट से हम डिस्क बना सकते हैं। और तुमने कल देखा था कि डिस्क से वीएम कैसे बनता है, कल तुम लोग ने देखा था, ठीक है। तो अभी पहले ये डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस होने दो, ठीक है। चलो, तो दिस इज द स्नैपशॉट उबंटू, मतलब कि ये जो था वो एक स्नैपशॉट बन के रेडी हो गया। अब हम इससे एक डिस्क क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ डिस्क, ठीक है। ये स्नैपशॉट आरजी में रहेगा, डिस्क नेम रहेगा मेरा स्नैपशॉट डिस्क उबंटू। जोन 1 सब कुछ सही है। नेक्स्ट इंक्रिप्शन, नेक्स्ट इंटरवर्किंग, नेक्स्ट एडवांस, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। क्लिक ऑन क्रिएट। तो जब भी स्नैपशॉट बनेगा तो उस स्नैपशॉट से हम एक डिस्क बना सकते हैं और उस डिस्क से हम वीएम बना सकते हैं, अगर हमें फिर से पूरा माइग्रेट करना है या रेप्लिकेट करना है कोई भी चीज को, ठीक है। लेट इट डिप्लॉय इट फर्स्ट। गो टू रिसोर्स। तो ये रहा मेरा स्नैपशॉट डिस्क उबंटू। अब हमारे पास देखो क्रिएट वीएम का ऑप्शन आ गया। अब हम इस डिस्क से एक वीएम बनाते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ये माई स्नैपशॉट वीएम, ठीक है। ये सब कुछ सेम रहने देते हैं, ये हमें कुछ और ऑप्शन लेने ही नहीं देगा, ये एज इट इज ही रहेगा। क्लिक ऑन दिस ऑल द पोर्ट्स, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेटवर्किंग, ठीक है। ये खुद से बना लिया माई उबंटू वीनेट, डिफॉल्ट ये ले लिया माई स्नैपशॉट वीएम। बेसिक बेसिक, नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एडवांस, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। चलो, वैलिडेशन पास हो गया। अब हम एक वीएम बना रहे हैं जो हमने स्नैपशॉट बनाया था उस डिस्क का, ठीक है। तो उस डिस्क के जो जिस डिस्क का हमने स्नैपशॉट बनाया था उस वीएम का आईपी ये था और उसका कंटेंट ये था। तो हमने उसी पॉइंट इन टाइम पे जब हमने वेब सर्वर बना लिया तो हमने उसका स्नैपशॉट लेके एक वीएम बना दिया, ठीक है। तो अब उस वीएम में ऑलरेडी हर चीज वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए जो इस वीएम में कॉन्फ़िगर्ड है। तो वो चीज चेक करने के लिए चेक करते हैं इसका डिप्लॉयमेंट। वेट फॉर द डिप्लॉयमेंट, इसे डिप्लॉय होने देते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि इसमें वो सारी चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो, हमारा रिसोर्स रेडी हो गया, ठीक है। इसे भी एक पब्लिक आईपी मिला हुआ है, हम इस पब्लिक आईपी को कॉपी करते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ अच्छे से कॉन्फ़िगर हुआ होगा, ये तो मेरा ओरिजिनल जो वीएम था ये उसका आईपी था, अगर हर चीज बढ़िया से अगर कॉन्फ़िगर हुआ होगा, तो अगर हम इस आईपी को हिट करें तो ऑलरेडी मेरा वेब सर्वर कॉन्फ़िगर्ड होगा, ऑलरेडी हमारे ये कंटेंट्स फिट ऐप वाले मेरे को इस नए आईपी में दिखना चाहिए, बिकॉज इट वाज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ द प्रीवियस स्नैपशॉट, मतलब प्रीवियस वर्चुअल मशीन। आई हिट ऑन एंटर, देखो हुआ एवरीवन। Yes, sir. चलो, आई बीन सेंडिंग बोथ द आईपीज, कमांड सी, ठीक है। So this one is the original server, this one is the original server, ठीक है। I'm sending you this one, command C, and this one is the snapshotted
सर्वर। सब लोग इसे हिट करके प्लीज देख लो कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 40.113 पे भी सेम कंटेंट आना चाहिए एंड द सेम कंटेंट शुड आल्सो बी शोन ऑन दिस 20.12.209। यस ठीक है, Yes, sir. चलो सर तो आ ये, रहा है। हाँ आ रहा है, यस सर। एवरीवन आ रहा है, आ रहा है, यस सर Yes. ठीक है चलो। चलो एक एक नई चीज के बारे में पढ़ते हैं। ये स्नैपशॉट के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि अच्छा हम अगर एट पॉइंट इन टाइम अगर स्नैपशॉट बना के रख लेंगे तो हमें बाद में रिकवरी करने में आसानी होगा, या फिर हो सकता है माइग्रेशन में भी आसानी हो कि हमें, मेरे पास स्नैपशॉट है, उस स्नैपशॉट से हम डिस्क बनाएंगे, डिस्क से हम वीएम बना लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने होम पे। आई गो टू माई वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब ये माई स्नैपशॉट वीएम जो है, ये माई स्नैपशॉट वीएम है, हम इसके डिस्क पे आए। अब इसके डिस्क पे आने के बाद हमारे पास एक स्नैपशॉट डिस्क उबंटू है, मतलब जो हमारा जो वहां पे डिस्क बन के आया था वो यहाँ पे तो मेरे पास है। तो क्या हम एक एग्जिस्टिंग डिस्क का साइज बढ़ा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी इसका साइज कितना था, 32 GB। ठीक है, अब हम इसका एक टैब में आता है जिसका नाम है साइज प्लस परफॉर्मेंस। आई क्लिक ऑन दिस वन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये बता रहा है ये 32 GB है, डिस्क टीयर P4 है, ये जो भी IOPS 120 है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं इस 64 पे, इसको 32 GB को मैं इसे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखो अज्योर कभी भी डिस्क साइज को घटाने नहीं देगा, बढ़ाने जरूर देगा। अब बताओ वो व्हाई डज इट नॉट अलाउ टू डिक्रीज दिस डिस्क स्पेस? एनीवन? जस्ट अ जनरल आंसर। सर अगर ऑलरेडी उसमें कुछ फाइल्स हैं तो परफेक्ट। अगर हम 16 GB पे जाएं तो ये बोलता है रिड्यूसिंग डिस्क साइज इज नॉट सपोर्टेड इन अज्योर टू प्रिवेंट डेटा लॉस। हो सकता है कि आपके डिस्क में कुछ ऐसे डेटा हो जो आप लूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम 64 GB पे 32 से 64 पे जाएं तो फिर देखो ये सेव करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ये क्या बोल रहा है? चेंजेस टू द डिस्क साइज कैन बी मेड ओनली व्हेन डिस्क इज अनअटैच्ड और द मैनेजिंग वर्चुअल मशीन्स आर डीअलोकेटेड। ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिस्क साइज बढ़ाना चाहते हो फ्रॉम 32 GB टू 64 GB और एनी अदर चेंजेस, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो okay Dev. So basically whenever we want to increase this disk size of a particular give me a minute, somebody has added. So basically, if suppose you want to increase the disk size, we have to stop the virtual machine first. Okay, so we'll be stopping the virtual machine first, then we will be doing other stuffs. चलो पहले virtual machine को stop कर अब देखो हमारा जो वर्चुअल मशीन है दैट हैज बीन स्टॉप्ड। सो अब नाउ लेट अस चेक वेदर इट्स अलाउइंग अस टू इंक्रीज द डिस्क साइज और नॉट। ओके, चलो।
See, now I am just converting this to 32 GB to 64 GB. अब ये देखो मेरे को सेव करने का ऑप्शन दे रहा है. So now it's basically now we are going to update the disk size. अब ये देखो ये हमारा disk size update हो गया. Everyone clear हुआ? So for just give me a minute. So this is basically how do we increase the disk size of a particular operating system. Again, now we have to go back to our virtual machine and we have to start this particular. अब ये जो है we will be starting again this server क्योंकि हमने इस सर्वर को स्टॉप कर दिया था. This was the server basically. Just give me a minute. इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ. See, हमारा सर्वर भी स्टॉप है इसलिए ये लोड नहीं होगा. Then we will going back to our virtual machine और उसे मैं स्टार्ट करता हूँ. Click on start. So let us wait for this virtual machine to get started. हम देखते हैं क्या होता है. चलो, so this is now in the running status. Now suppose I hit back. See, ये हमारा server on हो गया and we have then increased disk size. So this is basically how you increase the disk size for a particular operating system for any virtual machine. Clear हुआ ये concept? Everyone? Yes, sir. ठीक है. चलो, अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आज हम कंक्लूड करते हैं. ठीक है. उस टॉपिक का नाम है, एक हमारा एक टॉपिक है दैट आई वांटेड टू डिस्कस, दैट इज स्वैप ओएस. ओके, स्वैप ओएस ये करता क्या है? ठीक है. अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव एन रनिंग वीएम. ठीक है, इसके ऊपर कुछ सर्वर्स चल रहे हैं. ठीक है, तो अगर तुम्हें बोला गया कि फॉर दिस पर्टिकुलर सर्वर आई वांट टू डू सम कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, और तुम्हें डर है कि ये कहीं मेरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज में हो सकता है ये सर्वर डाउन हो जाए या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा इश्यूज आ जाए जो हम रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? यू विल क्रिएट अ स्नैपशॉट. फिर इस स्नैपशॉट से तुम क्या करोगे? एक डिस्क बनाओगे और उस डिस्क से तुम एक वीएम रेडी कर सकते हो. ठीक है, दिस विल बी द सेम वीएम जो ये इनिशियली जो वीएम था. ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगा? इसमें दिक्कत क्या होता है? जनरली ये हमारा बैकअप तो रेडी हो जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल सम R&D कंपनी है या फिर कोई एक फिनटेक कंपनी है, तो ये बोलते हैं ना कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे आईपी को, तुम्हारे मैक एड्रेस को हमने व्हाइट लिस्ट करके रखा हुआ है दैट यू कैन एक्सेस आवर फाइल्स एंड डेटा. ठीक है, अब तुम नया वीएम बनाओगे तो इसका तो फिर से नया आईपी बन जाएगा, इसका फिर से नया मैक एड्रेस बन जाएगा. सो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है कि हम स्वैप ओएस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हमको करना है तो हम इस वीएम के ऊपर हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस है ना वो करेंगे, और इसके जो डिस्क को, इसके ओएस डिस्क को इसके साथ स्वैप कर देंगे, इसके ओएस के साथ स्वैप कर देंगे. इसी को बोलते हैं हम लोग स्वैप ओएस. परफेक्ट. ठीक है, अब इस कंसेप्ट को हम लोग अभी अचीव करेंगे. ठीक है, कैसे अचीव करेंगे हम बताते हैं. चलो, तो फॉर एग्जांपल आई गो बैक टू माय सर्वर. ठीक है, दिस इज माय तो चलो हमारे पास दो सर्वर हैं अभी, माई स्नैपशॉट वीएम एंड माई उबंटू वीएम. हमारा ओरिजिनल कौन सा था? एवरीवन, ओरिजिनल कौन सा था?
माई उबंटू ओरिजिनल था, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन ना माई उबंटू पे करते हैं और एक काम करेंगे, हम ये माई स्नैपशॉट वीएम का हम एक डिस्क बना के रखते हैं, ठीक है। मतलब माई स्नैपशॉट वीएम का हम एक स्नैपशॉट बनाते हैं। आई गो टू द डिस्क, ठीक है, क्लिक ऑन डिस्क, आई क्रिएट ए स्नैपशॉट, इसका नाम लिखेंगे स्वैप स्नैपशॉट, ठीक है। ये जैसे रहने देते हैं, नेक्स्ट इंक्रिप्शन, नेक्स्ट नेटवर्किंग, नेक्स्ट एडवांस, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट व्यू एंड क्रिएट, नेक्स्ट क्रिएट। Let's wait for a deployment. चलो हम जब तक इसका एक स्नैपशॉट बना रहे हैं, चलो हमारा स्नैपशॉट बन गया। आई विल जस्ट क्रिएट अ डिस्क आउट ऑफ इट, ठीक है। इस डिस्क का नाम रखेंगे हम स्वैप डिस्क, स्वैप डिस्क, ठीक है। लेट इट बी। ये देखो 64 GB का स्नैपशॉट बना है क्योंकि हमने वो माई स्नैपशॉट उबंटू का हमने ऐसे स्नैपशॉट डिस्क बना रहा है, ठीक है। उसका हमने साइज को 32 से 64 कर दिया था। नेक्स्ट गो टू इंक्रिप्शन, नेक्स्ट गो टू एडवांस, नेक्स्ट गो टू टैग्स, नेक्स्ट गो टू रिव्यू एंड क्रिएट, ठीक है। एंड इन द मीन टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन सर्वर है ना, हम मेन सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन मतलब बोल रहे हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं। दिस वाज आवर मेन सर्वर 40.113, ठीक है। अब मेन सर्वर में कैसे हम गड़बड़ी कर सकते हैं, हम एक जाते हैं अपने सर्वर पे, दिस वाज आवर सर्वर, क्लिक ऑन एलएस, ठीक है। हम करते हैं सारे फाइल्स को रिमूव कर देते हैं, मतलब जस्ट अ बेसिक कुछ गड़बड़ी करना है हमें बस। rm --f एवरीथिंग जो भी है रिमूव कर दो। ये क्या करेगा, सारे फाइल्स को रिमूव कर देगा, ठीक है। क्लिक ऑन एलएस, हमारा सारा फाइल्स डिलीट हो जाएगा, बस खाली हमारे पास डायरेक्टरी रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब सपोज अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं, चलो हमारा सर्वर तो गड़बड़ हो गया कि हमारे सर्वर पे हो सकता है कुछ फाइल्स उड़ गए हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हुए। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है, ठीक है। अब मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है ना, हमने यहाँ पे एक स्वैप डिस्क बना लिया था ऑलरेडी। हमने उस उबंटू वीएम जो हमने ऑलरेडी स्नैपशॉट करके रखा हुआ था, हमने उसका एक डिस्क बना के रखा, ठीक है। तो आई विल गो टू माई होम, मैं वर्चुअल मशीन्स पे जाऊंगा और ये माई उबंटू वीएम का मेरा जो वो सर्वर है ना, वो डाउन हो गया है फॉर सम रीजन, एंड आई वांट एन इमीडिएट स्वैप ऑफ माई ओएस डिस्क, ठीक है। तो आई गो टू द डिस्क सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओएस डिस्क, स्वैप ओएस डिस्क। ये बोल रहा है आपको स्वैप करना है। आई एम रेडी फॉर स्वैपिंग अ ओएस डिस्क विद सम अदर वर्चुअल मशीन, क्लिक ऑन दिस वन, चूज एन एग्जिस्टिंग डिस्क। तो हमारे पास एक स्वैप डिस्क बन के अभी जस्ट रेडी है, हमने अभी जस्ट बनाया है स्वैप डिस्क। और यहाँ पे स्वैप करने के लिए जस्ट इसे कंफर्म कर दो बाय टाइपिंग ऑन माई उबंटू, क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अभी ये वर्चुअल मशीन को स्टॉप करेगा, पहले स्टॉप करेगा, स्वैप करेगा, फिर हमें जाके उसे ऑन करना है, ऑन कर देंगे, देन आवर सर्वर विल बी अप अगेन। चलो वेट करते हैं थोड़ा इसे। देखो अभी पहले माई उबंटू स्टॉप होगा। हाँ बताओ। सर जब चूज डिस्क में उसमें हाँ। स्नैपशॉट का ओएस डिस्क भी दिखाना चाहिए था। स्नैपशॉट का ओएस डिस्क दिखाना चाहिए था। हाँ सर, ऑप्शन में नहीं दिखाई देता, इस पे मतलब सारे ओएस डिस्क। हाँ सर। अरे पर हमने बनाया तो स्वैप द ओएस डिस्क फॉर बैकअप डिस्क और अनदर डिस्क फॉर वीएम ना, ये अनदर वीएम के लिए मांगेगा। लेकिन जो हमने ऑलरेडी एक स्नैपशॉट बनाया था, देखो स्नैपशॉट यहाँ नहीं दिखाएगा, यहाँ पे स्नैपशॉट नहीं दिखाएगा, यहाँ पे डिस्क दिखाएगा जो हम एक स्नैपशॉट से क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वो दूसरे वीएम का डिस्क दिखाएगा। इनिशियली जो हमने काम किया था, हमने वो माई उबंटू का ही स्नैपशॉट बना के तब जाके हमने उसके वीएम को बनाया था। वो माई उबंटू, ये माई स्नैपशॉट वीएम जो बनाया था, वो इनिशियली हम लोग ने इसका करके बनाया था, ठीक है। चलो ओएफ स्वैप डिस्क इज कंप्लीट नाउ, ठीक है। हमारा जो स्वैप डिस्क है वो रेडी है। आई गो टू द ओवरव्यू सेक्शन
और ये अभी देख लो हमारा स्टॉप डेड डीअलोकेटेड है, मुझे बस इसे स्टार्ट करना है। एंड लेट अस चेक कि हमारा सर्वर फिर से रनिंग स्टेट में आता है कि नहीं। वेट फॉर सम टाइम, क्लिक ऑन रिफ्रेश। अगर सब कुछ सही से कॉन्फ़िगर हुआ होगा देन वी विल बी डन विद दिस स्वैपिंग कंसेप्ट एज वेल। क्या ऑन नहीं हुआ क्या? अच्छा स्टार्ट हो रहा है, चलो ये स्टार्ट हो गया है। वेट फॉर अ मोमेंट, अगर ये स्टार्ट हो गया है, चलो एवरीवन, ये स्वैप हो गया। एंड स्वैप होने के बाद हमारे पास सारा डिटेल्स यहाँ पे रेडी है, ठीक है। तो Yes. हमने क्या किया, हमने इस माई उबंटू पे इसके स्नैपशॉट को बना के हमने उसके डिस्क को इस उबंटू के ओएस डिस्क के साथ स्वैप कर दिया। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्वैपिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ओएस डिस्क, ठीक है एवरीवन। आज हम लोग Yes, ने sir. बहुत कुछ पढ़ा। आज हम लोग ने पढ़ा अज्योर फाइल सिंक, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा स्नैपशॉट, और उसी का एक कंटिन्यूएशन पार्ट था स्वैप ओएस, ठीक है। आज सभी लोग ये सारे चीज को प्रैक्टिस करना, और जिनका कल का भी छूटा हुआ है ना वो पाइल अप होते जाएगा। सी आज हमने फिर नया चीज पढ़ लिया, और कल का हो सकता है किसी ने स्टोरेज एक्सप्लोरर नहीं किया हो, तो these things can get piled up, ठीक है। I am just stop recording it.